ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ سبھی تک بہت آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ پنجتن کے لال کی محفل ہے اور دربار بھی پنجتن کے لال کا ہے، اس لیے آج میں نے فضائل بھی پنجتن پاک کے پڑھنے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، بہت وقت نہیں، بہت مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ میں نے پھر سفر کرنا ہے۔ مجھے کل انشاءاللہ تعالی ایک سفر کے لیے، بلکہ مجھے کل بستی میں میرے پروگرام میں لکھنؤ کے قریب پہنچنا ہے، اس لیے میں بہت وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ سنیوں کی طبیعت یہ ہے کہ جب پنجتن کا نام لیا جاتا ہے تو پھر سنیوں کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں اور دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے سنیوں کا دل اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت کے اندر زندگی کے لمحات کو گزاریں، اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ لوگ دنیا میں کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں کہتے ہیں فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ زمین کے اوپر اگر کسی کو بہتر دیکھنا ہے تو بہترین انسان روئے زمین کا وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت جتنی ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی اتنی ہی ہوگی، اور جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی نہیں ہوگی۔ سنیو اندازہ تو کرو، ہم اہل سنت ہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر 500 ہندوستان کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی نالین کی، حضور کے نالین کی جس نے توہین کی وہ کافر ہو گیا۔ معاذ اللہ، حضور کی نالین کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نالین کیا ہے؟ یا تو اونٹ کے چمڑے سے بنی، یا تو گائے کے چمڑے سے بنی، یا تو بکری کے چمڑے سے بنی، جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی نالین اس لیے افضل ہو گئی کہ وہ محبوب کے قدموں میں لگ گئی۔ جانور کے چمڑے سے بننے والی نالین کو محبوب کے تلوے سے نسبت ہو جائے، اس کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو اس سے نفرت کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا نمازی بنے، حاجی بنے، غازی بنے، روزے دار بنے، ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا مومن دنیا سے جائے گا، فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پہلے جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو سوال و جواب کرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت عطا کریں گے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا اہل سنت پر مرے گا، شہادت کی موت مرے گا، بری موت سے بچے گا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اہل بیت کی محبت میں مرنے والوں کی قبروں کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، تو جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہو؟ جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہوگی؟ میں فضائل پڑھنے لگا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ یہ اہل بیت کی جو فضائل پڑھے جا رہے ہیں، محبت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کی
जिसने मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाह उसको इज्जत वाली तवील उम्र अता फरमाएगा। और जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा, उम्र तो मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। उम्र मिलेगी, देखें ना आप लोग उम्र पाते हैं लेकिन जलील होते हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को इज्जत कितनी मिलती है और अहले बैत की ताजीम कितनी की जाए। शिफा शरीफ में सैयदना सिद्दीक अकबर का कौल नकल किया गया है। ये सिद्दीक अकबर का मसलक है। काजी अयाज शिफा में लिखते हैं कि जितनी ताजीम हुजूर की जाती है, जितनी ताजीम हुजूर की जाती है, हुजूर की ताजीम के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है, बेअन ही वही तरीका हुजूर की अहले बैत के लिए भी इख्तियार किया जाए। इसलिए कि एक मकाम पर बाज हमारे फुक़हा ने लिखा है कि जुज़ की ताजीम कुल की ताजीम की तरह की जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जुज़ जो है वो कुल की ताजीम के बराबर का हकदार होता है। आसान करके आपको समझाऊं, मिसाल के तौर पर कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें हैं। पूरा कुरान चूमा जाता है, सर पे रखा जाता है, लेकिन एक आयत, बल्कि आयत का बहुत मुख्तसर सा हिस्सा ये ले लें, अलीफ लाम मीम जो है ये लिखा हुआ है, ये पूरा कुरान नहीं है, ये कुल कुरान नहीं है, ये जुज़ कुरान है, कुरान का जुज़ है। लेकिन 6665 आयतों का जैसे एहतराम करना वाजिब है, वैसे ही अलीफ लाम मीम अगर एक वरक पर लिखा हुआ मिल जाए तो उसका एहतराम करना भी वैसे ही लाजिम होगा। कुरान की तौहीन करने से जैसे काफिर होता है, वैसे एक आयत जो लिखी हुई है उसकी तौहीन करने से भी काफिर हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जुज़ का एहतराम जिस तरह किया जाता है, कुल का एहतराम जिस तरह किया जाता है, जुज़ का एहतराम भी उसी तरह किया जाएगा। कुल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और उनके जुज़ को अहले बैत रसूलुल्लाह कहते हैं। इसलिए सैयदना सिद्दीक अकबर का मसलक ये है। सिद्दीक अकबर कहते हैं जो एहतराम, जो ताजीम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए इख्तियार की जाती है, जो तरीका हुजूर के लिए इख्तियार किया जाता है, वही तरीका अहले बैत के लिए भी इख्तियार किया जाए। यही वजह तो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुस सहाबा है। वो हजरत इमाम हसन पाक को अपने कंधों पे लेकर मदीने की गलियों में घूमते थे। किसी ने कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? कहते कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, जो अपने महबूब को करते देखा है वही कर रहा हूं। अहले बैत अतहार की शान ये है कि सिद्दीक अकबर इमामुस सहाबा अपने कंधे पे बिठाते हैं। कैसी ताजीम करते सैयदना सिद्दीक अकबर। और फारूक आजम की तो शान ही निराली है। मैं दूर नहीं जाना चाहता, बहुत करीब करीब से अहले बैत अतहार की शान आपको सुनाना चाहता हूं। किस तरह एहतराम करते थे हजरते सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। एक मर्तबा बचपने में फारूक आजम के साहबजादे ने हजरत इमाम हुसैन पाक को कहा कि तेरा बाप तो हमारे खानदान का गुलाम है, कि तेरा बाप तो हमारे खानदान का गुलाम है। बेटे को बात अच्छी न लगी या अल्लाह अकबर, इसलिए कि आज के दौर में अपने आप को किसी का गुलाम कहना आसान है। उस दौर में जब गुलामों का मर्तबा जानवरों से भी कम था, गुलामों को जानवरों से भी कम हैसियत दी जाती थी, उस दौर में कहा तेरा बाबा तो हमारे खानदान का गुलाम है। बेटे ने जाके कहा अब्बा जी हुसैन ऐसा कहते हैं, हुसैन यूं कहते हैं। फारूक आजम ने कहा चल तो तशरीफ लाए। पूछा कि आपने ऐसा कहा? इमाम हुसैन पाक ने कहा हाँ जी मैंने कहा। इसलिए कि कोई बंदा माँ का दूध पीकर बड़ा होता है, कोई बंदा बकरी और गाय का दूध पीकर बड़ा होता है। हुसैन उस जात का नाम है जिसने नाना की जबान चूस करके जिंदगी के मराहिल को तय किया था। लोग क्या अहले बैत की बराबरी की बात करते हैं? दुनिया में जो बच्चा पहले पैदा होता है, जो बच्चे की पैदाइश होती है, उस बच्चे की पहली ग़िज़ा शहद होती है, जिसको तहनीक कहा जाता है। और किसी नेक बंदे के हाथ से उस बच्चे के मुंह में शहद डाला जाता है।
कभी मस्जिद का मुअज्जिन आता है शहद चटाने के लिए, कभी किसी मस्जिद का इमाम आता है शहद चटाने के लिए, कभी कोई शेख तरीकत पीर तरीकत आता है शहद चटाने के लिए, खुश नसीबी ज्यादा है तो कोई सैयद आ जाता है शहद चटाने के लिए। मगर कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर, आपको ये बात बताऊं कि इमाम हुसैन उस खुश नसीब शख्सियत का नाम है जिसके मुंह में पहली गिज़ा डालने के लिए मस्जिद का मुअज्जिन और इमाम नहीं आया, बल्कि नबियों का इमाम तशरीफ लाया। इमाम हुसैन पाक कहते हैं, हाँ मैंने कहा है कि आप हमारे खानदान के गुलाम हैं। इतना सुनना था, सुनने के बाद गुस्सा नहीं आया। आज कोई होता तो कहता कि मैं तो इतना इल्म वाला, मैं तो इतने तकवे वाला, मेरी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। उमर जानते थे अहले बैत की बुग़्ज़ के साथ कोई नेकी काम ही नहीं आ सकती। जिसके दिल में अहले बैत से दुश्मनी है, काबे में मरे हुजूर कहते तो भी जहन्नम में जाएगा। काबे का एतबार नहीं होगा, दिल की कैफियतों का एतबार। इस हदीस को रौदतुश शौदा के मुसन्निफ ने लिखा, इसीलिए कहता हूं यार सबसे लड़ना, नबी के घर वालों से कभी नहीं लड़ा। हाँ, इसलिए कि जो लड़ता है कब्रों का निशान भी मिट जाता है, नस्लें भी खत्म हो जाती है, नाम भी नहीं लिया जाता। इसलिए बड़ा ख्याल करना, ख्याल करना, बहुत ख्याल करना। अगर फलना फूलना है, तवज्जे जुमले पे गौर करे, अगर फूलना और फैलना है और फलना है तो प्यार करो, फूलोगे भी फलोगे भी। लेकिन अगर फूल के फटना है, फूलते दो किस्म के लोग हैं, एक फूल कर फलते हैं वो अहले बैत के मुहिब हैं, और जो फूल कर हम अहले बैत के सामने हम करते हैं, फूलते हैं, वो फलते नहीं हैं, वो फट जाते हैं। जो फूल के झुकते हैं वो फलते हैं, जो फूलते हैं तकब्बुर से वो फट जाते हैं। इसलिए निस्बतों का एहतराम करना। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जैसे सुना ना कि आप हमारे खानदान के गुलाम हैं, कहने लगे शहजादे जबान से कहा ना जरा लिख कर दे दे, लिख के दे दे, लिख के दे दे। कौन लिखवा रहा है? हुजूर कहते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। लिख के दे दे, लिखवा लिया। हसन मेरे मौला ने लिख के दे दिया, इसलिए कि सखी का घराना था। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले है करीमों की लजपाल घराना है। लिख कर दे दिया। बेटे की आंखें फटी के फटी रह गई, लिखा लपेटा, कहा चलो बेटा अपना काम हो गया। आंखें भर आई, अपना काम हो गया। बेटे ने कहा बाबा क्या काम हो गया? कहा बेटे जन्नत की जमानत मिल गई। अल्लाह क़यामत में पूछेगा उमर क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे नबी के बेटे के हाथ से जन्नत की जमानत लिखा करके ला। ये हुसैन पाक है, मौला हुसैन की शान ये घराना है। इसलिए आओ अहले बैत से मोहब्बत